سوشل میڈیا پر کردار کشی سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن اور ان کے صاحبزادے کی شکایت پر NCCI نے کارروائی شروع کر دی۔ شکایت کو انکوائری نمبر بھی لگا دیا گیا۔ مزید جانیں گے جاوید اسکر سے۔ جاوید بتائیے اس حوالے سے NCCI کی جانب سے کیا کارروائی کی گئی ہے؟ بالکل صوبائی وزیر شرجیل میمن اور ان کے صاحبزادے کے خلاف سوشل میڈیا پر کردار کشی کے حوالے سے ایک اپلیکیشن ان کے وکیل نے NCCI کے پاس جمع کرائی تھی، جہاں شکایت موصول ہونے کے بعد اس کے حوالے سے باقاعدہ انکوائری نمبر 1420/2026 لگا کر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس ضمن میں سروس پرووائڈرز کو 5 اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہمی کے لیے خطوط ارسال کیے جائیں گے، جبکہ اکاؤنٹس آپریٹ کرنے والے افراد اور جگہوں کا تعین بھی NCCI تحقیقات کا حصہ ہوگا۔ اور شکایت کے مطابق فیس بک کے 5 اکاؤنٹ اور نام سے موجود پلیٹ فارم کے خلاف کارروائی کی درخواست کی گئی تھی اور شکایت کے مطابق میر علی رضا کیس سے تعلق جوڑنے سے دیگر الزامات کے تحت شرجیل میمن اور ان کے بیٹے کے خلاف میڈیا مہم چلائی گئی اور شکایت کے ساتھ 5 فیس بک اکاؤنٹس پر موجود مواد کے اسکرین شاٹ بھی منسلک کیے گئے ہیں، جس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی بہت شکریہ جاوید اصغر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مکہ معاہدہ کسی کے خلاف جارحیت کے لیے نہیں، خطے میں امن، سلامتی اور خوشحالی کے لیے ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا مکہ اور مدینہ دنیا کے مقدس ترین مقامات ہیں۔ پاکستانی افواج اور عوام سعودی بھائیوں کے ساتھ مل کر ان مقامات کی حفاظت کی ذمہ داری نبھاتے رہیں گے۔ آزاد کشمیر میں کچھ عناصر نے اغیار کے اشاروں پر حالات خراب کرنے کی کوشش کی، واضح ثبوت موجود ہیں۔ امن اور تحمل کا راستہ اختیار کرنے والوں سے نئی بننے والی حکومت بھی بات چیت کے لیے تیار ہوگی۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی معاہدہ سائن کیا گیا، جس کا مقصد خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کو فروغ دیا جائے۔ اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ کوئی ایگریشن ہو، نہ صرف ان 3 ممالک کے درمیان بلکہ پوری مسلم امہ کے لیے یہ انتہائی باعث تقویت ہے۔ پچھلے سال پاکستان اور سعودی عرب کا ایک دفاعی معاہدہ ہوا تھا۔ پاکستان کے عوام اور افواج کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی تھی کہ وہ سعودی آرم فورسز کے ساتھ مل کر مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ کی حفاظت کی ذمہ داری ہمیشہ نبھاتے رہے۔ آزاد کشمیر جن لوگوں نے وہاں پر جان بوجھ کر معاملات کو خراب کیا، اغیار کے اشاروں پر کام کر رہے تھے، جس کے واضح ثبوت ہیں، جو صرف تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے خرابی کرنی ہے، اناکی مچانی ہے، تو ان کو تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لیکن جو امن کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے نئی حکومت یہ موقع مہیا کرے گی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں مکہ دفاعی معاہدے کے بعد پاکستان کی سفارتی سرگرمیاں تیز۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ایران، سعودی عرب اور کویت کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے۔ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ کو پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان طے پانے والے مشترکہ دفاعی معاہدے کے خد و خال سے آگاہ کیا۔ عباس اراغچی نے معاہدے کے اہم پہلوؤں سے آگاہ کرنے پر اسحاق ڈار کا شکریہ بھی ادا کیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر گفتگو کی، جبکہ 2 طرفہ اور کثیر الجہتی فورمز پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ آزاد کشمیر انتخابات کا تیسرا مرحلہ، 4 نشستوں پر ووٹنگ۔ ابتدائی اور غیر حتمی نتائج کے مطابق 1 سیٹ پر پیپلز پارٹی، 1 پر مسلم لیگ نون، 1 نشست پر عوامی دست و بازو، جبکہ 1 سیٹ پر جماعت اسلامی کے امیدوار کو برتری حاصل ہے۔ اہل 14 باغ کی بات کریں تو یہاں 214 میں سے 117 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق عوامی دست و بازو پارٹی کے ساجد اقبال 23,548 ووٹ لے کر آگے ہیں۔ جبکہ آپ کو بتائیں کہ اہل 15 باغ میں جماعت اسلامی کے راجہ محمد خان کو 8,783 ووٹوں کے ساتھ برتری حاصل ہے۔ اہل 16 میں پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری ہے، یہاں قمر الزمان 1,440 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ نون لیگ کے امیدوار سردار میر اکبر خان کو اب تک 1,414 ووٹ ملے ہیں۔ اہل 17 حویلی میں نون لیگ کے محسن عزیز 16,500 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے فیصل راٹھور 11,050 ووٹ لے کر یہاں دوسرے نمبر پر موجود ہیں۔
आगे बढ़ें और आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज की कॉल। पीटीआई के अहम रहनुमा आमने सामने। अरकान पार्लियामेंट के ना आने पर सलमान अकरम राजा फट पड़े, बोले कहाँ है सब, गिड़गिड़ा कर इल्तिजा के बावजूद कोई नहीं आया। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर का जवाबी वार कहा, अरकान को और भी बहुत काम होते हैं, ये कौन सा तरीका है कि रात 12 बजे मैसेज कर दो कि सुबह पहुंचे। सलमान अकरम राजा खुदा के लिए सियासत सीख लो। कहाँ है हमारे लोग, कहाँ है हमारे पार्लियामेंटेरियन? उनसे गिड़गिड़ा कर मैंने इल्तिजा की थी कि आज जहाँ मौजूद रहना, बताना कि हम खान के साथ खड़े हैं। तो कहाँ है हमारे दोस्त? जिसने बुलाना होता है टाइम पे बुलाया करे। पार्लियामेंटेरियन का कोई कसूर नहीं है। इन लोगों को आज तक पता नहीं कि पार्टी किस तरह चलानी है। रात 12 बजे मैसेज कर लेता है कि पार्लियामेंटेरियन पहुंच जाए। पार्लियामेंटेरियन असेंबली नहीं, हल्कों में होते हैं, तो ये कोई तरीका तो नहीं है। रात 12 बजे तो खान साहब की सेहत का नहीं पता चला कि यार तबीयत खराब है, तो दिन को बुला दे, फिर नहीं आते तो हम पूछ लेते कि आप क्यों नहीं। किसी पार्लियामेंटेरियन का कसूर नहीं है, बुलाने वालों का कसूर है। मुझे मालूम है 5 अगस्त की हमने कॉल दी, कौन उस दिन निकला, कौन नहीं निकला, कौन सिर्फ बैठ के तनकीद करता है। एक एक का मुझे पता है और अब मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं, हर चीज को आपके सामने लाऊंगा। खुदा के लिए सियासत सीख ले, उसको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंटेरियन के और भी कमिटमेंट होते हैं। अगर आपने बुलाना है तो दिन को बुला लेते, 12 बजे जो न पहुंचता हम पूछ लेते कि क्यों नहीं पहुंचे। 27 सितंबर इम्तिहान है पाकिस्तानी कौम का, उस दिन हम देखेंगे क्या होता है। कोई ये बहाना नहीं होगा कि फलां कॉम्प्रोमाइज्ड है, फलां कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसलिए हम बाहर नहीं निकलते। कौम फैसला करे ना, कौम ने अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है, इन 70, 80, 90 पार्लियामेंटेरियंस के लिए नहीं निकलना। बदकिस्मती ये है कि जो पार्लियामेंट से बाहर है उसका सारा मसला पार्लियामेंटेरियन के साथ है। समा का नया अंदाज नाजरीन को पसंद आ गया। सोशल मीडिया पर प्रोग्राम मौक़िफ़ के धूम। समा का प्रोग्राम मौक़िफ़ टॉप ट्रेंड में शामिल। अवाम में मकबूल सीनियर सहाफ़ी और सीनियर एंकर पर्सन जावेद चौधरी और सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी सत्तार खान प्रोग्राम मौक़िफ़ के मेज़बान हैं। हर खबर पे यकीन कर लेना एक बहुत बड़ी गलती है, और हर खबर को झूठ समझ लेना उससे भी बड़ी गलती है। कौम को जज्बात नहीं हकाइक चाहिए। हकायक वो जो आपको दिखाए जाते हैं, लेकिन सवाल तो करना चाहिए। हाँ, लेकिन हर सवाल के भी बहुत से पहलू होते हैं। खामोशी किसी मसले का हल नहीं, और शोर भी हमेशा सच नहीं होता। हम वो कहेंगे जो लोग सुनने से कतराते हैं, और हम वो पूछेंगे जो लोग बताना नहीं चाहते। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। साथ रहिए। वेलकम बैक। कहाँ है सुथरा पंजाब? क्या ये है सुथरा पंजाब? फैसलाबाद का हाल भी बेहाल, हर जगह कचरे के अंबार, गंदगी और ताफून, सांस लेना मुश्किल। समा के पहुंचने पर शहरी फट पड़े, देखिए रिपोर्ट। शहर शहर गंदगी के पहाड़, क्या ये है सुथरा पंजाब? फैसलाबाद में भी गलियां गंदी, बाजार बदबूदार, कोरोना का बजट लेकिन कारकर्दगी सिफर। फैसलाबाद कहने को पाकिस्तान का मैनचेस्टर, लेकिन यहाँ हर तरफ हैं गंदगी के ढेर। खोखर टाउन, बिस्मिल्ला कॉलोनी समेत अक्सर इलाकों की गलियां कचरे से भरी पड़ी हैं। नहीं, ये सुथरा पंजाब ने गंदा पंजाब है। यहाँ पर आते हैं ना, ऊपर से सफाई करके ना चले जाते, तस्वीर वगैरह बना देते हैं। इतनी स्मेल आती है, मक्खी मच्छर, बच्चे बीमार हो रहे हैं। ठीक है, ये देखे ना कितनी गंदगी है। तहसील जड़ावाला में भी सफाई की सूरत हाल संगीन। बचियाना और नवाही इलाकों में सुथरा पंजाब प्रोग्राम नाकाम। सुथरा पंजाब जब अथॉरिटी बनी थी, हमें ये उम्मीद थी कि जड़ावाला में सफाई सुथराई का अच्छा काम होगा, लेकिन जिस तरह करोड़ों के अरबों के बजट है, उसके मुकाबले में सफाई का इंतजाम इंतहाई नाकस है। शहरियों का कहना है सुथरा पंजाब सिर्फ इश्तिहारात तक महदूद है, हमें पुराना पंजाब ही वापस दे दें। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने पंजाब हुकूमत के दावों और कारकर्दगी की कलाई खोल दी। शहला रजा और शर्मिला फारूकी ने पंजाब को निशाने पर रख लिया। जिसको ये तरक्की कहते हैं वो तरक्की नहीं है, कुछ अतराफ के लोग उन्हें खुश करते हैं कि ये तरक्की है, वरना आज लाहौर से बाहर जाएं, जो आसपास छोटी छोटी सारी जगहें हैं डूबी पड़ी हैं। आज तक आपके पास आपका सीवरेज सिस्टम नहीं है। कितने अरसे से आपके खानदान की हुकूमत, और ये ना हो कि अभी तक 17 से 20 सीटों के दरमियान का ताना मिलता है कि ये एडजेसेंट पंजाब से जो है सीटें ये खत्म हो गई तो फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा, फिर तो महारानी को कुछ दे ही नहीं सकते। हमने बड़े बड़े दावे सुने कि लाहौर बड़ा सिक्योर शहर है, पंजाब में औरत की तरफ आंख उठा के कोई नहीं देखता। मुझे इतना दुख हुआ कि जिसको आप सेफ सिटी कहते हैं, वहाँ पर एक जहनी माजूर बच्ची, उसको गाजियाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर उसके साथ ज्यादती की जाती है। पंजाब के अंदर CCD बनाई गई और कहा गया जी क्राइम कंट्रोल क्या कंट्रोल करने निकले, वो तो डेथ स्क्वाड बन गया। 670
CCD led encounters पंजाब और कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं। बानी से मुलाकात की इजाज़त दे दें, जमानत देते हैं, बाहर आकर कोई सियासी बात नहीं करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, खबरदार किया कि मुलाकात ना कराई तो सड़कों पर आएंगे। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने अरकान पार्लियामेंट के धरने और जुमेरात को अडियाला जेल जाने का ऐलान कर दिया। इमरान खान साहब की सेहत की हालत भी ख़राब है और बुशरा बीबी साहिबा की सेहत की हालत भी ख़राब है। हम चाहते हैं कि फैमिली की मौजूदगी में उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में इमरान खान साहब का इलाज हो। तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप खान साहब की फैमिली गारंटी देती है कि अगर वो इमरान खान साहब से मिलें, बाहर कोई सियासी बात नहीं करेगी। अगर उसी हटदर्मी पर ये कायम रहे जिस पर ये हैं, तो कल इंशाअल्लाह ताला जितने भी हमारे MPs हैं, MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे। जुमेरात के दिन तमाम पार्लियामेंटेरियंस अडियाला जेल जाएंगे। अगर मंगल के दिन मुलाकात ना हुई तो जुमेरात के दिन फिर कोशिश करेंगे। अगर जुमेरात के दिन भी ये हटदर्मी कायम रही तो जुमेरात के दिन ही रात के 10 बजे पूरे पाकिस्तान में हर चौक को डी चौक बनाएंगे। मीर रजा केस में अहम मोड़ गुलिस्तान जौहर का मुश्तबा गेस्ट हाउस 71 बरस की खातून ताहिरा सुल्ताना का निकला। लियाकत अली नामी शख्स बंगला किराए पर लेकर बतौर गेस्ट हाउस चला रहा था। रवां साल मई में बंगले को किराए पर दिया गया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम, इस हवाले से क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए, मीर रजा के वालिद पहले रोज़ से इस बंगले के हवाले से शकूक का इजहार करते रहे कि जब वो अपने लापता बेटे की तलाश में इस बंगले तक पहुंचे तो यहाँ पर कुछ मशकूक नौजवान थे। पहले एक नौजवान दरवाजे पर आया, जब उसे मीर रजा की तस्वीर दिखाई तो वो अंदर भाग गया और अंदर से भी 3-4 थे, वो दीवार कूद के फलांग गए, फरार हो गए थे। तो इस गेस्ट हाउस के हवाले से बड़ी एक मुतज़ाद सी चीज़ें सामने आ रही थी और मुसलसल इस पर एक शकूक का इजहार किया था कि ये बंगला, ये गेस्ट हाउस किसकी मलकियत है। तो जो पुलिस का रिकॉर्ड दिखाया गया तो पुलिस का जो एक किराएदारी एक रिकॉर्ड होता है कि किस शख्स को किराए पर दिया गया है, तो ये पता लगा कि ये किराए पर दिया गया था लियाकत अली नामी शख्स को और उस बंगले को मई 2026 रवां बरस उसने लिया था और उसे गेस्ट हाउस के तौर पर चला रहा था। गवाहों में एक आसिम और जाम अली के नाम से दस्तखत हुए और जो इसके ऑनर जो मलकियत जो ज़ाहिर हुई है वो 71 साला ताहिरा सुल्तान के नाम आया और उनके जो शौहर थे वो 2008 में लेबर डायरेक्टर के तौर पर रिटायर हुए। तो एक मलकियत का मामला एक सामने आएगा कि ये किसकी मलकियत है, चूँकि एक मलकियत का बड़ा सवाल उठ रहा था। और यहाँ से 7 मुलाजमीन को पहले हिरासत में लिया गया था गेस्ट हाउस के। जब इस कत्ल की तफ्तीश शुरू हुई तो एक मुलाजिम जो कम उम्र है उसको छोड़ दिया गया था और अब भी वहाँ पर गेस्ट हाउस पर मौजूद है। 6 मुलाजमीन को अभी भी पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। तो असलम, जिस तरह से आपने कहा कि 6 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया, एक तो बताइएगा कि अभी तक कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, तादाद क्या हो चुकी है। दूसरा, ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि बॉडी से तेजाब भी मिला है। देखिए, जो मजमूई तादाद है वो 21 है, जिसमें मीर रजा के दोस्त भी हैं, बिजनेस पार्टनर भी हैं, लेकिन अभी उनके बयानात, उनसे पूछगछ, उनके जो बयानात की जांच पड़ताल की जा रही है। गिरफ्तारी हम नहीं कह सकते किसी एक शख्स की भी। हिरासत में 21 अफराद हैं, जिनमें 6 गेस्ट हाउस के मुलाजमीन हैं। जो नमूने लिए गए थे बॉडी से तो उसमें ये बताया गया है कि जो उसकी शर्ट का एक हिस्सा था उस पर किसी और के पसीने के भी, किसी और शख्स के, और साथ साथ तेजाब फेंकने के भी, तेजाब से झुलसने के भी शवाहिद मिले। साथ साथ जो मैदा और फेफड़ा है वहाँ फेफड़ों में भी और मैदे में भी तेजाब की मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं। ये मुमकिन तौर पर जब चेहरे पर तेजाब फेंका गया हो तो उस वक्त कुछ अंदर उसके जो है वो गया हो, ज़बरदस्ती पिलाने वाली बात नहीं, लेकिन ये कि कुछ कतरे इस तरह शवाहिद ज़रूर सामने आए हैं कि तेजाब के मैदे में भी मौजूद थे और फेफड़ों में भी तेजाब की मौजूदगी के शवाहिद मिले। इसी तरह शर्ट पर भी एक शवाहिद मिले हैं। ये ज़राए का कहना है, क्योंकि तफ्तीशी टीम के ज़राए हों और फ्रांसिक के ज़राए हों, उनकी जानिब से ये इतलात मिली है। असलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।